Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing really well. So in today's video, we are going to discuss about class 9th Science NCERT chapter number 9, that is force and laws of motion. So for your kind information, I would like to tell you that we have uploaded 3 parts of the same chapter, part 1, part 2, part 3. 3 videos we have uploaded. So if you have not watched till now, then please go to our channel. All the videos will be available in the playlist. Watch all those parts because the basics has been discussed in those videos. If the basics of the chapter is not clear, then you cannot understand the concept that we are going to discuss in this video, because basic is very important of the chapter. Only if you have the idea of basics, only then you can understand the concept of the chapter from in between, because learning is a sequential process. All the topics in the book are given in a sequential manner, so you must learn in those manner only. You can follow that pattern only, whatever is given in your book. Okay, so without any further delay, let's get started at today's video. And today's concept, what we are going to discuss, we are going to discuss about the types of inertia. Inertia I have discussed in the 3rd part, so please watch that one. But I would like to recall the definition of inertia for you, because many of the students are watching this video for very first time. So must understand what is inertia. Inertia is nothing, it is the property of the object of the body due to which it opposes any change in the state of rest or in the state of motion. That means if a book is kept on the table, then it will be in rest until and unless we are not applying any force on that book. Similarly, if the object is moving with a uniform speed, then it will be in motion until and unless we are not applying any force on it. What it means? Inertia means किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करता है. आपने देखा जैसे आपके रूम में क्या होगी, टेबल होगी तो वो एक ही जगह पर रहती है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया. उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. तो वो इनर्शिया वर्ड का मीनिंग ही होता है अनचेंजिंग. मैंने आपको बताया भी था 3rd वीडियो में. इनर्शिया मीन्स अनचेंजिंग. सो जो टेबल है वो आपकी वहीं पे रहेगी. वाई? जस्ट बिकॉज इनर्शिया अपोजेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी. कब तक रहेगी? जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते. जब तक आप उस पर कोई उसको पुश नहीं करोगे टेबल को, या आप फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगी. ओके अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगी. और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा. कब तक मूव करेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, कोई बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक उसका जो मोशन है वो कंटिन्यू रहेगा. वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगा. वो होता है इनर्शिया. क्लियर? इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की या बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज करने का अपोज करता है, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे वो स्टेशनरी हो. क्लियर? So right now we need to discuss only about the types of inertia. So the very first type, inertia is mainly of 3 types. 3 type का होता है inertia. First inertia is inertia of rest. Very simple. Okay, the property of the body due to which the body opposes any change in the state of rest. What it means? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है और वो अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करता है. क्यों करता है? जैसे आप फोर्स लगाओगे तो एकदम से ऐसा नहीं कि फोर्स लगाते ही वो चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. आपको क्या करना पड़ेगा? सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हो. तो वो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया अपोजेज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपोजेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर आप स्टेट ऑफ रेस्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक अपोज फेस करना पड़ेगा. जिस अपोज को हम क्या बोलते हैं? एक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अपोज को या रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं. ओके, सो द डेफिनेशन इज रिटन ऑन द बोर्ड. द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा. अगर कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कि कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देते. और इमीडिएटली चेंज नहीं होगा. ऐसा नहीं आपने फोर्स लगाया सडनली चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स, एक
पर्टिकुलर वैल्यू का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसकी स्टेट चेंज होगी। आपने देखा होगा टेबल आपके रूम में होती है नॉर्मली, तो आप अगर उसको पुश थोड़ा सा अगर आप उसको शिफ्ट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपने उसको स्लाइड कर दिया एकदम से स्लाइड हो जाता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू का फोर्स चाहिए जिससे कि वो ओवरकम कर सके जो इनर्शिया होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको ओवरकम कर सके। जब हमारा फोर्स इनर्शिया को ओवरकम कर लेगा उस केस में बॉडी की स्टेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट अपोजेज एनी चेंज इन द रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर ठीक है कब तक रहेगा रेस्ट में? जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। सो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। हैव यू एवर सीन व्हेनेवर वी आर हैविंग डस्ट इन द कारपेट्स एंड इफ वी आर जस्ट बीटिंग दोज कारपेट्स एंड इफ वी आर शेकिंग दोज कारपेट्स देन द डस्ट पार्टिकल्स गेट रिमूव्ड ईजिली। आपने देखा होगा आप जो कारपेट्स वगैरह होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं उनको सिंपली बीट करते हैं किसी स्टिक से, या फिर उनको मोशन में सिंपली उसको शेक कर देते हैं। ठीक है, शेक करने से क्या होता है उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वाई इट इज़ सो? So whenever you are having the carpet, then if the carpet was in rest, अगर carpet रखी हुई है तो कैसी होती है? रेस्ट में होती है। But if you are just setting the carpet into motion, आप उसको शेक कर रहे हो तो carpet कैसे हो जाती है? मोशन में जाती है। But the dust particle tends to remain in the rest because of inertia of rest। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है डस्ट कारपेट तो मोशन में जाती है और डस्ट पार्टिकल आपके क्या होते हैं? रेस्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से वो सिंपली वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को। मैंने आपको बताया कारपेट से डस्ट रिमूव करने के लिए हम कारपेट को बीट करते हैं या फिर हम उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं, झाड़ देते हैं ना कारपेट को। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कारपेट में जो डस्ट, अगर आप स्टेज देखोगे कारपेट पड़ी हुई है फ्लोर पे, ठीक है, तो वो रेस्ट में है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और भी सारी चीज़ें। तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं जब कारपेट के साथ में होते हैं। जैसे ही आप कारपेट को झाड़ दोगे या फिर आप कारपेट को क्या करोगे? शेक करोगे या कारपेट को आप बीट करना स्टार्ट करोगे तो कारपेट तो मोशन में आ जाएगी, बट जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहेंगे। तो वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। क्यों रेस्ट में रहना चाहते हैं? मैंने आपको बताया था क्योंकि उनके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो कारपेट मोशन में आ गई, पार्टिकल्स रेस्ट में थे तो ईजिली वहाँ से क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्लियर? आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हैव यू एवर सीन whenever we are shaking the trees then leaves get fall off or leaves get fell down। वहाँ से जो लीव्स होती हैं वो फेल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? और लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम द ट्रीज और फ्रूट्स गेट डिटैच फ्रॉम द ट्रीज। बहुत सारे आपने देखा होगा मैंगो ट्री है, अगर आप मैंगो का ट्री है, राइट नाउ मैंगो सीजन इज गोइंग ऑन, इफ मैंगो ट्री इज देयर एंड इफ यू आर शेकिंग द मैंगो ट्री देन सडनली मैंगो गेट्स फॉल ऑफ और मैंगो गेट डिटैच फ्रॉम द ट्रीज। वाई इट इज हैपनिंग? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में अगर ट्री रेस्ट में है, अभी रुका हुआ है, ट्री तो रेस्ट में ही होता है, ट्री तो मूव करता नहीं है। जैसे आप ट्री को शेक करना स्टार्ट करोगे ट्री की जो ब्रांचेस होंगी वो मोशन में आ जाएंगी, बट द मैंगो दैट वाज अर्लियर इन रेस्ट सो इट विल ट्राई टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो क्या करेगा? पहले रेस्ट में था वो, तो अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी ब्रांचेस होंगी वो तो मोशन में आ जाएंगी और जो मैंगोज होंगे वो रेस्ट में रहेंगे। इसकी वजह से वो क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, या फिर लीव्स जो होती हैं वो डिटैच हो जाती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। Inertia of motion is just very simple. It is, I have written the definition over here, the property of the body due to which any object opposes any change in the state of motion. That means if the body is moving continuously, then it will be in motion till then if we are not applying any force on the object. दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, मतलब उसकी जो बॉडी है, उसकी जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो कंटिन्यूसली उसी स्टेट में रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। तो जो आपका जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट? So I have written the definition over here, the property due to which it opposes any change in the state of motion.
तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखेगा जब तक कि आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। क्यों रखेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। लेट्स टेक वन एग्जांपल टू मेक इट वेरी क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं कि आपने देखा होगा व्हेनेवर वी आर सिटिंग इन द बस और व्हेनेवर वी आर स्टैंडिंग इन द बस एंड द बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड, देन इफ द बस सडनली स्टॉप्स देन व्हाई वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप बस में कभी ट्रेवल किया हो आपने, आपको पता होना चाहिए जब हम बस में खड़े होते हैं, बस में बैठे हैं, तो अगर एकदम से बस वाला ब्रेक अप्लाई करता है तो हम सडनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों फॉल करते हैं, हमारी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों फॉल करती है? दिस इज जस्ट बिकॉज inertia of motion. How? I would like to tell you. So whenever we are moving in the bus, whenever we are sitting in the bus, then we are sharing the motion of the bus. हम उसी बस की मोशन को शेयर करते हैं. That means we are moving with the same velocity as the bus moves. जिस velocity से बस मूव करती है हम उसी डायरेक्शन में उसी velocity से मूव करते हैं. But whenever the driver applies brake on the bus, then bus suddenly comes to the rest. अगर आप ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो जो बस होती है वो रेस्ट में जाती है, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोशन आवर बॉडी मेंटेन्स द स्टेट ऑफ मोशन, सो दैट्स व्हाई वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक बार फिर से देखते हैं, अगर हम किसी बस में बैठे हैं, ठीक है, या फिर खड़े हैं बस में ट्रेवल कर रहे हैं और सडनली तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसी स्पीड से मूव कर रही है जिस वेलोसिटी से बस मूव करती है। जो बस का मोशन होता है वही हमारी बॉडी का मोशन होता है। अगर बस के ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया तो बस क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है, और हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्ट में नहीं होती। हम भी तो मूव कर रहे थे, तो हमारी जो लोअर पोर्शन होता है बॉडी का, जो लेग्स वाला जो बस के कांटेक्ट में होता है, वो सडनली रेस्ट में आ जाता है, बट द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी वांट्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हमारा जो अपर पोर्शन होगा बॉडी का वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में ही रहना चाहेगा, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं, राइट। So this is the concept of inertia of motion. Okay, clear है? Next, I think this is all about the concept of inertia of rest and inertia of motion. Please pause the video to make a note of it. Either you can take the screenshot. That will be very helpful. Whatever the method looks easy to you, you can use that one. जो भी आपको easy लगता है वो आप कर सकते हैं. Okay, so just wait. Please take the screenshot. Yes. Yes, students, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was inertia of rest and inertia of motion. Now we need to discuss the inertia of direction. Very, very important. This concept is very, very important. And what is this inertia of direction? Okay, so the property of the body due to which it opposes any change in the direction of motion. That means whenever we are moving in a particular direction, then it will move only in that direction until and unless any force is not applied on that object. अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर आपको उसको डायरेक्शन चेंज करना है तो अपने आप चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है देन यू नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन द inertia of direction. Do you know why if we are traveling in the bus in a straight line and if the bus suddenly takes a sharp turn, then why we fall on the sideways direction? Why we fall sideways? आपको पता है अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और बस अगर सीधी चल रही है, एकदम से टर्न आता है, तो जब बस टर्न करती है तो हम एकदम साइड में क्यों फॉल होते हैं? हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम से गिरने लगती है, एक तरफ हम गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से अपने डायरेक्शन को मेंटेन करती है। और अभी देखते हैं एक बार फिर से एग्जांपल क्या है।
तो जब हम किसी भी बस के साथ, बस के अंदर बैठे हैं, बस के अंदर खड़े हैं, अगर हम बस के साथ मूव कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया बस के मोशन को ही शेयर करते हो, आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होगे, जिस डायरेक्शन में बस मूव करेगी। बट जब बस टर्न लेती है तो बस तो मुड़ जाती है, बट हमारी जो बॉडी होती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट सिंपली ट्राइज टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। हम पहले स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो हमारी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन को ही मेंटेन करती है। बट बस क्या होती है, सडनली टर्न ले लेती है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम से टर्न नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम साइडवेज डायरेक्शन में फॉल करते हैं। क्लियर हो गया क्या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया अगर हम बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जब बस मुड़ती है तो हम एकदम से ऐसे साइड में क्यों गिरते हैं? जस्ट जब आप बस में मूव कर रहे हो तो आप बस के मोशन को शेयर करते हो। दैट मीन्स आप बस की स्पीड से और बस की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होते हो। जब टर्न आता है तो बस का जो ड्राइवर होता है वो सडनली बस को टर्न करता है, बट आपकी जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, तो आपकी जो बॉडी होगी वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से उसी डायरेक्शन को मेंटेन करेगी जिसमें पहले मूव कर रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है और आप सिंपली साइडवेज फॉल करते हो। अगर आपकी डायरेक्शन में चेंज हो जाती तो आप किसी भी आप फॉल नहीं करते, आप सीधे बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही आप मूव करते रहते। बट जब बस मुड़ती है तो बस की डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है, बट हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होने की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हम सिंपली एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, फॉल डाउन करते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट so that we can discuss our next concept, that is some common examples based on the inertia of the body, right? So please take the screenshot of it. Okay students, so I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was inertia of direction. Right now we need to discuss some common example that are based on the property of the inertia. So I have already discussed about these, but you must be having the clear idea because many questions are coming in the examination. Many times the examiner is asking the same type of question that is based on the property of inertia in the examination, right? So you must having the clear idea about this example, why it is happening, because they can simply give the question of give reason. So first question is passengers traveling in a bus fall in the forward direction when bus stops suddenly. So what question they can give you? They will ask why the passengers traveling in the bus fall in the forward direction when the bus stops suddenly. That means अगर एक बस चल रही है, बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर बस एकदम से स्टॉप हो जाती है तो आप आगे की डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं? So this is the question. So why it is happening? I have told you. Whenever जब भी आप बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होता है, आप बस की मोशन को शेयर करते हैं, आप बस की स्पीड से ही और बस की डायरेक्शन से ही मूव करते हैं। बट जैसे ही बस स्टॉप होती है तो बस तो रेस्ट में आ जाती है, बट डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो आप मोशन की स्टेट को मेंटेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हो। आपका जो लोअर पोर्शन होता है वो तो रेस्ट में आ जाता है सडनली, बट द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी मेंटेन्स to try to maintain the state of motion. So that's why we fall in the forward direction, right? Second is passengers traveling in the bus second is passengers fall sideways when bus takes a sharp turn. Now what kind of question they can make? Why passengers fall sideways when bus takes a sharp turn? This example I have explained in the inertia of direction. Very simple. Okay, whenever we are traveling, I have told you, whenever we are traveling in the bus, then we are sharing the motion of the bus. That means we are moving with the same speed and same direction in that the bus is moving. जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है हम भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट जब ड्राइवर सडनली टर्न लेता है तो बस तो एकदम से टर्न हो जाती है, बस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और बॉडी ट्राइज टू मेंटेन दैट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रहे थे, हमारे जो इनर्शिया ऑफ मोशन डायरेक्शन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो क्या करता है, हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, इस वजह से हम साइडवेज डायरेक्शन में फॉल करते हैं। अगर हमारी डायरेक्शन में चेंज हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कारपेट जस्ट बाय शेकिंग और बीटिंग द कारपेट विद द स्टिक। आपने देखा है जब कारपेट वगैरह में डस्ट हो जाती है तो हम उसको सिंपली शेक कर देते हैं
या हम उसको बीट करके, स्टिक से बीट करके डस्ट पार्टिकल्स को साफ कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं. वाई इट हैपन्स? बिकॉज when the carpet is was simply whenever the carpet is whenever the carpet is kept on the floor, अगर carpet बिछी हुई है या रखी हुई है, in that case carpet in rest and all the dust particle they were in rest. But whenever we start shaking the carpets or beating the carpets, जब हम carpets को beat करना स्टार्ट कर देते हैं या shake करना स्टार्ट कर देते हैं, उस केस में हमारे जो dust particles होते हैं वो रेस्ट में रह जाते हैं और हमारी जो कारपेट होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. कारपेट मोशन में आ जाती है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी इस रेस्ट की पोजीशन को ही मेंटेन करते हैं. इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं या फिर सेपरेट हो जाते हैं. क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं. डस्ट पार्टिकल्स क्यों रिमूव हो जाते हैं कारपेट से जब हम उनको बीट करते हैं या उनको शेक करते हैं? क्योंकि जब अर्लियर जो होता है दोनों कारपेट और डस्ट पार्टिकल शेक करने से पहले दोनों कैसे होते हैं, रेस्ट में होते हैं. बट जब हम कारपेट को शेक करते हैं, कारपेट को बीट करते हैं, तो जो कारपेट होती है वो मोशन में आ जाती है. बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो हमारे डस्ट पार्टिकल पहले रेस्ट में थे तो वो रेस्ट की स्टेट को ही मेंटेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो रेस्ट में रहते हैं और कारपेट मोशन में आ जाती है, जिसकी वजह से वो कारपेट से सेपरेट हो जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल्स. ओके, दीज आर वेरी एग्जाम्पल, मैनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स दे कैन आस्क. I have told you one example why the leaves get detached whenever we are shaking the trees. क्योंकि अगर हम किसी ट्री को शेक कर रहे हैं, हिलाते हैं, तो उसकी जो लीव्स होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो डिटैच क्यों हो जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. I have told you whenever we are having a tree, then earlier before shaking the tree is in rest, leaves in the rest, fruits in the rest. But whenever we started shaking the trees, then tree or branches of the tree ultimately comes in motion. जो उसके ब्रांचेस होती हैं मोशन में जाती हैं, बट द फ्रूट्स दैट इज इन द ट्री एंड द लीव्स इन द ट्री tries to maintain the state of rest because of inertia of rest and they simply get detached from the tree. जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ये जो लीव्स होती हैं वो inertia of rest की वजह से अपने रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो उससे अलग हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सम कॉमन एग्जाम्पल्स. प्लीज पॉज द वीडियो or take the screenshot, whatever the way suits you, you can use that one. Okay, just wait. Okay students, so now I think you have done the screenshot of the previous concept. Now let's discuss the next concept, that is Newton's second law of motion. This is very very important. In many local books they will give you the direct formula that force applied on any object is equal to the mass product of the mass and acceleration produced in the body. So that is very simple, they will give you the direction. But in this book or in our module, we are just trying to clear each and everything in detail, how the Newton's law, second law is derived, each and everything, that why, from where we have got the formula F equals to ma. Don't study direct formula that F equals to ma. It's, yeah, that's okay, no problem, nothing is wrong in that, but you must be having a clear idea that from where the formula is derived. Don't study the formula directly. However, it's quite useful in the questions. If you don't have time, then you can easily learn the formula F equals to ma. Many times you can apply the formula in the questions, that's all, no problem. But if you are having so much time, then you must be having good idea that from where the concept is coming, how the formula F equals to ma is being derived. So from experiments we have found that many scientists, scientists are just fond of doing experiments, so they do some kind of experiment. So many scientists has done some experiment and they have calculated two assumptions. Okay, they have calculated two observations. First is acceleration produced in the body is just proportional to the force applied. How is it so? For example, we are having a body of mass m, or if we are having a wooden block of mass m, and earlier if we are applying force of 2 Newton, then acceleration will be little bit less. If we are applying a force of 20 Newton, if we are increasing force, then acceleration is also getting increased. अगर कोई ऑब्जेक्ट है और आप कम फोर्स लगा रहे हो तो वो स्लो मूव करेगा. अगर आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होता है, उसकी स्पीड जो होती है बढ़ जाती है. स्पीड बढ़ती है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो
इंक्रीजिंग। जैसे आपने देखा होगा कार वगैरह में क्या होता है या बाइक आप चलाते हो तो उसमें पहले आप एक्सेलरेटर से हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। हम अगर लो एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको तो फिर आपका लो उसमें एक्सेलरेशन होगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप साइकिल चला रहे हो, सिंपली एग्जांपल ले सकते हैं साइकिल का। साइकिल में आप स्लो पैडलिंग कर रहे हो, अगर आप स्लो पैडलिंग कर रहे हो, पहले धीमे धीमे पैडलिंग कर रहे हो, कम फोर्स लगा रहे हो, तो जो साइकिल होगी वो स्लो चलेगी, मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो लो होगा, मतलब बहुत कम होगा एक्सेलरेशन। अगर आपने फोर्स ज़्यादा कर दिया, इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी मोर, ठीक है। अगर आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप फोर्स कम लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन कम होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है वो भी इंक्रीज होगा। मैंने आपको साइकिल वाला एग्जांपल दिया, साइकिल में आप धीरे धीरे पेडलिंग करेंगे, कम फोर्स लगाएंगे, साइकिल धीरे चलेगी, और तेज़ लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तेज़ पेडलिंग करेंगे तो साइकिल में जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। ये सिंपल एग्जांपल है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स इफ यू वांट टू मूव हैवियर बॉडीज देन इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगर आप किसी हैवी बॉडी को मूव करना चाह रहे हो, सेम फोर्स है, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स है, एक लाइटर बॉडी है और एक हैवियर बॉडी है। तो अगर आप लाइटर बॉडी को प्रेस करोगे सेम फोर्स से तो हमारा जो लाइटर बॉडी होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगी, जो हैवियर बॉडी होगी वो स्लो मूव करेगी। क्यों? क्योंकि हैवियर बॉडीज़ में एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता है। अगर मास ज़्यादा हो गया बॉडी का तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। हैवियर बॉडीज़ में कम एक्सेलरेशन होता है, लाइटर बॉडीज़ में आप ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, सो दैट्स वाई अगर आपने सेम फोर्स से, एक कार है और एक ट्रक है, आपको पुश करना है, हालांकि आप पुश नहीं कर सकते नॉर्मली, और कोई एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लाइट है एक हैवी है, सेम फोर्स से आप अप्लाई कर रहे हो तो लाइट वाले में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, हैवियर वाले में क्या होगा, कम एक्सेलरेशन होगा। दैट मीन्स हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी दूसरी कम होगी। मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई जो लाइटर बॉडीज़ होती हैं इजीली आप उनको मूव कर पाते हो, जो हैवियर बॉडीज़ होती हैं उनको मूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो इसलिए ऐसा होता है। नाउ दीज आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मैंने आपको बताया लाइटर बॉडीज़ में कम एक्सेलरेशन होता है, हैवियर बॉडीज़ में, सॉरी, लाइटर बॉडीज़ में ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है, उनको आप इजीली फास्ट मूव करा सकते हो। हैवियर बॉडीज़ में बहुत कम एक्सेलरेशन होता है। इसलिए अब इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, फोर्स अप्लाइड अपॉन mass of the body. Acceleration is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of the body. This is the main concept. यहाँ से एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग हो गया फोर्स ज़्यादा तो फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग हो गया मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ से हमने फोर्स फाइंड आउट किया है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड मास। सो वी कैन डिफाइन द न्यूटन लॉ एज द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड द मास ऑफ द बॉडी। ये सिंपली यहाँ से स्टेटमेंट आ जाएगा। इसी स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे। अभी आप इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड लॉ। सो हाउ कैन वी डिफाइन सेकंड लॉ, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड force applied on the object is directly proportional to the product of acceleration produced in the body and mass of the body. मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जितना भी फोर्स आप लगाओगे तो वो एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अभी देखते हैं, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद डेफिनेशन लिखनी रहेगी ये बस, ओके। सो जस्ट वेट, आई विल राइट द डेफिनेशन ओवर हेयर, डोंट वरी, देयर इज नो नीड, जस्ट वेट, ओके। यहाँ से आप कर लिया हुआ है इतना, यहीं पे लिख देते हैं स्टेटमेंट, ओके, जस्ट वेट। So now
Newton second law states, Newton second law, just wait, second law states that the force applied on any object, the force applied on any object is directly proportional to the product of mass and acceleration produced in the mass and acceleration. Just simply you can write this. Okay, so Newton's second law states that, comma, inverted comma, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ. ये सिंपल स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का. कहाँ से डिराइव किया है हमने? यहीं से डिराइव किया. फोर्स अप्लाइड, ये लिखा है मैंने, द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन. ये वाला जो स्टेटमेंट था इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया. दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, दैट हाउ इट इज कमिंग सेकंड लॉ. ओके, नॉट डायरेक्टली आई एम टेलिंग यू F इक्वल्स टू ma, दैट्स व्हाई आई कैन ऑल्सो डू दैट वन. मैंने वो नहीं किया कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताता, दैट्स ऑल. Now you must be having good idea that how is it coming, how the formula is coming. Okay, so ये formula था simple. कितना हो गया? Force is directly proportional to the acceleration and mass of the body, right? So please take the screenshot of this. Okay, please take the screenshot of this. I think few concepts are left, only 2 or 3 lines are left. Please pause the video to make a note of it, either take the screenshot. Okay, so now just wait. Now you know the force is represented by the letter F, so we are writing over here, don't get confused. So force is F, force is directly proportional to mass and the acceleration. Now if we are replacing this sign of proportionality, then what we are getting? We are getting the constant K. So F equals to Kma, and from experiments scientists have calculated K equals to 1. What should be the value of K? That is 1. Okay, so now F equals to ma. This is the second law of Newton. This gives you that how much force is applied on an object. आपको ये क्वांटिटेटिव वैल्यू बताएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपने फोर्स लगाया तो कितना फोर्स लगाया, राइट? इट विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स. इज इट क्लियर? सो फोर्स एक बार देख लेते हैं. सेकेंड लॉ क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सेलरेशन. ये सिंपल आपका सेकेंड लॉ है. और बहुत से लोग आपको यहाँ से बताएंगे कि F इक्वल्स टू ma, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज क्वाइट करेक्ट. बट कहाँ से आया है ये सब आपको पता होना चाहिए. ओके, तो यहाँ से हमने फोर्स से प्रोपोर्शनल टू ma करा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिप्लेस किया, तो फिर कांस्टेंट आ गया K कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1. तो यहाँ से कितना आ गया? F इक्वल्स टू ma. फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. So this is all about your today's concept, Newton's second law we have discussed. Okay, please write it down in your copy or take the screenshot, that will be helpful for you. Okay, just wait. So students, this is all about your video. If you like this video, then please hit the like button. If you are watching this video for very first time on our channel, then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you will never miss any update from the Kumar Academy. Whenever we are uploading a new video, you will get the notification for that. And I would like to request you, please share this video as much as possible, because we get a lot of support from the students and many more persons are there. So because your support means a lot to you, without your support we cannot do anything. So I would like to request you, please share as much as possible. And thank you so much all of you for staying on this channel for 30 or 20 minutes, because I know it's a tough time, it's a tough job to stay on a channel for 30 minutes or 40 minutes. Okay, so thank you so much all of you for watching this complete video. Thank you once again.